Namaste, Sarigo. Today we have Mr. Vivek Sharma with us. He is a senior product and business manager at Hotel Republic. I believe the term is self-descriptive and it is already describing his credibility. Right. So I won't waste much of your time and the mic is all open, sir. Anything that you would like to say about your introduction and then we can just begin with the podcast. Growth, consistency, idea, reality. It all begins at one point, fear. Want to know how the industry works or how to build yourself? Learn from experienced people from the industry. Subscribe to know more. Sure, sure. So first of all, I would like to say thank you, Manish, to providing me a good platform that we can talk and share our thoughts, which can help a lot of candidates that are currently studying, Right. irrespective of their courses, either it is management or either it is technological. So like we can help them a lot. So that's a perfect platform that you are doing and that you provided us and your audience as well. So, like, if I talk about my introduction, so as you know, my name is Vivek Sharma, and as of now, I'm working as a product and senior business development manager, right? And before that, I was running my own startup back in 2020. That was a tech startup where that was a basically service provided tech company where we provide services like app development, web development, right? Even though there are less competition towards the AI, but even though we were able to manage getting AI and machine learning projects over there. So I ran that company successfully around a year. Then COVID hit, so we are successfully able to manage first wave of COVID. Then the second wave, we were not able to successfully manage. There are lots of factors which impacted that particular thing. Like then again, I started one more company, which was a tech company where we provide the training and development things to the candidates who are doing a technical courses like BTech and Tech and all. Even though BCA and MCA are one of the good courses over there. But then a certain tragedy happened with us, so we need to shut it down as well, right? Then I personally thought कि कहीं ना कहीं कमी मुझ में ही थी कि that I was not able to handle that much of pressure of entrepreneurship. I was not able to pre-plan those things which can be major cause when your startup grows slowly, right? So I must say that problems are in me. So to overcome those problems, I joined one of the biggest edtech firm till now in India, Byju's, right, as a sales associate. To learn the sales strategies, to learn the insight, to learn the marketing, to learn how basically a structure works, right? So I successfully grown up over there in Byju's and learned lots of things. And then I resigned over there as a manager when I was handling a team of 20 to 30 associates over there and generating revenues, right? So then I came back to IT company, which was working as a service-based company as well. That was a reputed company. So I worked over there around 2.5 years, but then business manager as well. Then again, I'm working on one of the startup as well. Right? So that was my basic introduction. If you like to add something else, then we can add on right here. Otherwise, we can cover with the question. I believe the introduction itself is self-justified, right? You already have gained a lot of exposure. Like working at multiple positions and multiple designations in different companies, having the entrepreneurial side of your journey as well. So the thing is that definitely listening to your story will be a very interesting journey for the students as well who are actually listening to this podcast, right? So we'll just begin with it, right? And we'll just get to know you more through the questions, right? Through your experience and through your stories. Sure. Right. So the thing is that we'll just begin with your career journey. That how has it been starting from your college till this point in your life? So if I talk about my college life and then moving towards the corporate life, so there are, I'll say, only downs and downs. There was no ups until unless I joined a corporate. So there were only downs and downs, right? And then that can be relatable with many of the friends and candidates watching out there, right? So we generally say there are lots of ups and downs, but I'll say there was downs and downs only. So before joining my college and getting admission into BTech, so let me just took you up 2 years back over there, right? When I was in my 11th standard. So when I was in my 11th standard, so like math is my hated subject forever, right? I don't like math, and that was a subject which gave me dark night dreams. So I failed in maths, right? And if somebody failed in maths, so definitely there was some impact, which came across the math towards the physics as well. Right. So I failed in physics, and when I failed in maths and physics, so try to save with them, I failed in chemistry as well, right? So I was failed in physics, chemistry, and mathematics. The remaining English and Hindi I passed out somehow. So then that was a very heartbreaking moment for me and for my family as well. There was a lot of pressure, Right.
the friends of mine who was studying in the same class are, going towards the boards in 12th standard and all. And I was there stuck. So at that point of time, we were very young and we were not mature, to understand all those kind of stuff. So that was a very heartbreaking moment for me. But then somehow I pop up, and my family, my relatives, much more support at that point of time, and they give me courage to bounce back. So finally took a 1 year of gap in my 11th standard. Then I completed my 12th with PCM. Like many of the people have told me that if you are afraid of mathematics, if you are afraid of physics, you should have chosen arts and commerce, and all that would be a mite easier. But I think that none of the subjects are easier if you are want to master in them. Right. We generally say that arts is easier, but when we go into deep about the history and science history, and a lot of subjects are there, so they are also tough. Right, definitely. So I think that every subject is tough. So I choose what I have studied till my childhood to 11th standard. That was a PCM, right? So I was very much familiar with that. So changing the stream from there was not a good choice from my perspective. So I choose PCM over there only, right? So I did my 12th as a private. I didn't went to school, only went to tuitions, and then completed my 12th with only 65%, right? That was a UP. So that was a very less percentage, but I was happy. I was happy, my family happy, and my relatives are also happy, and they are very supportive to me. So till like if a person is getting failed in 11th standard in 3 subjects and then passed out with 65%, then he'll never think about doing BTech or engineering, right? He'll never think. So my friends were doing engineering, and the person who was studying with me are also going for engineering, but I was not going for engineering. I was going for a lower grade of engineering, which was ITI. Right, that is the lowest grade of engineering which a person can do. So I was eager to do ITI. So I went to the college, I filled out the forms and waiting for the merit list, but I thrown out from the merit list that your percentage are not meeting our criteria. So even ITI rejected me at that point of time. So again, my heartbreaking moment had started. So then I somebody asked me that why don't you choose Polytechnic? Why don't you try Polytechnic? And that's a diploma in engineering. I said, yeah, that's a good choice. I should try it. So I filled out the form of diploma, and then but then I again failed in the entrance exam of Polytechnic diploma. So again, one more heartbreaking moment for me. So my life was like, I was thinking that what was happening with me. So the Polytechnic way is also closed for me. Like I was thinking to get a government college, but that door was also shut down for me because I failed in an entrance exam. Right. Then somebody suggested me to go with the private college and do Polytechnic over there. Right. So till now, nobody was forcing me to do BTech. Till now, even myself is not enough confidence to do BTech, taking engineering, admission in engineering in a 4 year of graduation. Right. So no one is suggesting me, no one is forcing me. Even myself is not confident to do so. Right, I was enough confident in myself that I cannot do engineering and BTech. Right, I only made for the lower grade of courses in comparison of that. Right, so I personally said that no course is lower grade of that. But if you compare with the year of graduation and all syllabus, so that in that we like, right? Yeah. So I went to a private college. I visited multiple private colleges in fact, right, to do Polytechnic. But then when I went to the college that I graduated from, so I met one person over there. He was a computer science teacher over there at college. And he said that, Vivek, okay, so you came here to do Polytechnic. I said, yes, sir. So he said, why don't you choose BTech? I said, sir, I failed in 11th in 3 subjects, physics, chemistry, mathematics. Then I took 1 year of gap. I cleared my 12th with 65%. What are you saying, sir? I cannot do BTech. Right? So he said, be confident, Vivek. You can do that. Right? Like in Polytechnic, you also have to face mathematics, na? Right? It's also not that much easier for you, right? In Polytechnic, you also do lots of calculations. Whether you choose mechanical, whether you choose civil or any other electrical or electronics, you have to do calculations and also mathematics are everywhere. They will not leave you behind. But he said one line that, see, if you do BTech and if you do Polytechnic, so the job you can do with Polytechnic, you can also do with BTech, right? But the job you can do with BTech, you will not be allowed to do with Polytechnic, right? So it's just 1 year of difference. Choose Polytechnic. Like I'm saying to you, I'm confident. So I said, "आप ठीक है सर? ये बात तो मैंने सोची नहीं अभी तक." Right. So then I choose BTech. So he guided me for BTech, but did not guided me that which branch should I choose. Should I choose computer science? Should I choose electrical, electronic, or mechanical? Right. Till then, I was not aware about computer science. मुझे पता भी नहीं था, प्रोग्रामिंग का P भी नहीं पता था मुझे. I was literally not aware कि C क्या होती है, क्योंकि मैं जिस स्कूल से स्टडी किया वहाँ पे ये सब नहीं था. ठीक है. मुझे नहीं पता C प्रोग्रामिंग क्या होती है, Python क्या होती है, कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, एप्लीकेशंस बनती कैसे. I was literally have zero knowledge. Right. So, but I belong to a village. Right. So there I have observed the engines, the tractor engines, right, trolley engines, right. So I was much more interested towards the engine side. So I choose mechanical by myself. That I'll do mechanical, right. So I took admission in mechanical. So that's how my graduation journey started, right. And again, as I said that I was a very very big failure. I was in my college days as well, right.
I failed 2 subjects in first semester, mathematics and physics again, right? And I again failed in 1 subject in second semester, mathematics too. So then I met a girl. So when I came into second year, no, so I met a girl. She was a fresher, right? So we met at a college fest. So she said that sir आप fail क्यों होते हो? तो I said यार मैं fail होना नहीं चाहता, और पता नहीं मैं क्यों fail होता हूँ. ठीक है, so she asked me, okay, so tell me, what do you do when you write an exam paper? So what do you do? So I said it's simple. 30 मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, मैं 40-45 का करके आता हूँ. तो she said कि इसलिए आप फेल हो रहे हो, आप 100 का करके आओ तो आपके 30 आ जाएंगे. So somehow she insulted me, but मुझे समझ आ गया मुझे पास कैसे होना है, राइट? ये मैथमेटिक्स और फिजिक्स से मुझे कैसे पास होना है, राइट? तो एक्चुअली मैंने जो अपना इंजीनियरिंग किया वो AKTU से किया. AKTU में क्या होता है, अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है तो वो थर्ड सेमेस्टर में आप क्लियर करोगे, और अगर आपकी सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो फोर्थ सेमेस्टर में आप क्लियर करोगे. ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर की बैक मैंने बैक का फॉर्म फिल आउट किया, जिसमें मेरी मैथमेटिक्स फर्स्ट में बैक थी, फिजिक्स फर्स्ट में बैक थी, राइट? तो शी हेल्प्ड मी अ लॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो मैं अच्छे से पेपर करके आया एंड आई पास्ड विद अ वेरी गुड मार्क्स. तो उस टाइम मुझे समझ में आया छोटी छोटी चीजें समझना कितना आसान है ना, बट कोई समझा तो दे हमें. कभी कभी क्या है कि हम अपने ही डिलेमा में चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक सर्कल में हम घूमते रहते हैं. हमें वो ब्रेकआउट मिल जाए ना उस सर्कल से बाहर जाने का, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. कितनी सही बात है. ठीक है, तो उस टाइम मुझे समझ आया, है ना, उस मोमेंट पे हमें समझ आया कि यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो बिना मुझे डर रहा था बस इस चीज से, क्यों नहीं लिख पा रहा था मैं. तो उस मोमेंट से फिर मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया. ऐसा नहीं हो कि वो मोमेंट में लाइफ चेंज कर दी और मैं बिल्कुल ही पढ़ाकू बन गया, पर थोड़ी थोड़ी चीजें मैं पढ़ने लगा, राइट? एक चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगा, जो मैंने कभी मिस नहीं की, जो आजकल मैं बहुत देखता हूँ, बहुत ही देखता हूँ, मतलब ये तो कॉमन है, कॉलेज के लेक्चर मिस करना. ठीक है, वो चीज मैंने कभी नहीं. मैं जनरली बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सपेक्टिव था. मैं डे स्कॉलर था, ठीक है, और मैं पर डे 40 to 50 किलोमीटर ट्रैवल करता था अपने कॉलेज जाने के लिए, बट मैं करता था. ठीक है, क्योंकि मुझे लगता था कि यही मेरी दुनिया है. अगर ये भी चांस मेरे हाथ से गया ना तो फिर मेरा कुछ नहीं होने. सही बात है. ये लाइफ ने मुझे बहुत ही ज्यादा प्रीशियस चांस दिया है, इसमें मुझे खुद को प्रूव करना है. 1 साल मजे में ले चुका हूँ, जिसमें मैं 3 सब्जेक्ट में फेल हो चुका हूँ. ठीक है, एक्चुअली जब एक फ्रेशर आता है ना कॉलेज में, तो वो बहुत सारी चीजों में घूम जाता है ना. तो वहां से मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, राइट? बट आई नेवर मिस माय lectures. चाहे क्लास में 5 बच्चे बैठे हो, 10 बच्चे बैठे हो, I always went to the lectures and I always listen to my teachers what they are saying. Right. If they are even telling their college story, that was also inspiring for me at that point of time. Right. So in my final year, right, when my 6th semester comes to an end, right, I fill out form for an internship. So 6th semester के बाद internship and all शुरू हो जाती है engineering में. So I fill out. I got an opportunity to do internship with one of the Maharatna Company of India, right? That is the BHEL, Bharat Heavy Electrical Limited. Yes. तो हर मैकेनिकल इंजीनियर का सपना होता है BHEL में जाने का, राइट? एटलीस्ट उसको देख ले उसके अंदर काम कैसे होता है. So I spent 3 months over there in BHEL. तो उनका जो प्रोसेस था, जो उनका प्लांट था, तो एक्चुअली BHEL में टरबाइन्स बनती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, राइट? तो वहाँ पे एक 2 BHK फ्लैट की जितनी तो मशीन है, कार्नेगी मशीन एंड ऑल, इतनी बड़ी बड़ी मशीन है वहाँ पे. यू विल नॉट बिलीव, बट एक्चुअली में ऐसा एग्जिस्ट करता है. इतनी बड़ी एक मशीन है, राइट, जो टरबाइन्स पे काम कर रही है. तो वहां पे 3 महीने बिताने के बाद आई रियलाइज कि मैं अपनी लाइफ के 40, 45, 50 साल नहीं बिता सकता इसी में. राइट नाउ इमेजिन कि BHEL एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे हर मैकेनिकल वाले का ड्रीम है, राइट? सारे प्रिकॉशंस वहां पे फॉलो होते हैं, ठीक है, एक एक चीज वहां पे परफेक्ट है, परफेक्शन के साथ चल रही है वहां पे एक एक चीज. बट इवन दो वहां पे इतनी हीट जनरेट होती है ना, यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट? आपको बहुत टाइम लग जाएगा उसको हैबिचुअल बनाने के लिए, ठीक है. और मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस भी वहां बहुत ज्यादा, क्योंकि मेटल्स गिरे पड़े रहते हैं इधर उधर. फिर भी बहुत प्रिकॉशन के बाद भी वहां पे चीजें ऐसी होती हैं. तो फिर से मेरी लाइफ में हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट शुरू हो गया यार. मुझे लगता था कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ लाइफ में अच्छा चल रहा था, अच्छा खासा मैकेनिकल प्लांट में काम करते, मतलब सब कुछ ठीक था. बट देन मेरे सेल्फ थॉट ने कहा कि नहीं यार, इसमें नहीं जाना. तो देन आई स्टार्टेड, आई केम बैक टू माय कॉलेज अगेन एंड आई वाज वेरी डिसहार्टेड एट दैट टाइम. So everyone was like congratulations, relating me and asking me the experience कि कैसा रहा. मैं तो बता रहा था, but then I said कि भाई नहीं जाना मैकेनिकल में, आप लोग मैकेनिकल में जाओ, मैं नहीं जाऊंगा. तो मेरा फाइनल ईयर शुरू हो चुका था, 7th सेमेस्टर शुरू हो चुका था, प्रोजेक्ट्स एंड ऑल हम लोग बिल्ड कर रहे थे. कंपनीज भी आने लगी थी, 1-2 कंपनीज आने लगती है मैकेनिकल की, बट मैं नहीं बैठा हूँ, ठीक है. तो देन आई मेट, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत बार ना हम अपनी लाइफ में आए हुए लोगों को ना इग्नोर कर देते हैं, राइट? बट हमारी लाइफ में ना कोई भी इंसान हमारे चाहने से नहीं आ रहा, दैट्स द ग्रेस ऑफ द गॉड कि कोई भी इंसान हमें मिल रहा है, ठीक है. वो हमारा एक फ्रेंड हो सकता है जो हमारे साथ डेली हैंग आउट कर रहा है, वो हमारा एक टीचर हो सकता है, ठीक है. आप कोई ऑनलाइन मिला हुआ फ्रेंड हमें वो हो सकता है, हम किसी वर्कशॉप में गए, किसी टीचर ने कोई बात कह दी जो हमसे रिलेट कर दी, ठीक है. तो ऐसे मेरी लाइफ में ना बहुत लोग मिले, राइट? तो उस टाइम पे भी जब मैं ये सब चीजें फील कर रहा था, तो आई मेट विद वन ऑफ द टीचर ऑफ माइन,
right? So she recently joined my college, and she recently, post graduated. So we also met in a college fest. So I was the head of college fest, and whatever the fest is going on, that entire process going through by me only. So she said, okay, Vivek, so you are in your final year. So what about your placement? How is the preparation and all going on? So I said, man, everything is going, not going well actually. तो मैंने कुछ और सोचा था, वो कुछ और रहा है, और मुझे मैकेनिकल में नहीं जाना, बट कोई और दूसरा रास्ता मुझे नहीं दिखा. So then she said के why don't you go in IT? Why don't you try IT? So I said, ऐसा हो सकता है? She said, of course, ऐसा हो सकता है. What happens if you graduated with mechanical? If you have a good knowledge of programming and all, so you can make a better place for yourself in any IT company. They value the talent. So I said, okay, so what is the roadmap? क्या पढ़ना पड़ेगा? So she said, okay, so तुमने C programming तो पढ़ी है ना first semester? I said, yes, so start with that only. I said, okay. So I started learning C, but actually ये हर स्टूडेंट के साथ होता है. उधर पढ़ना शुरू करते हैं, वो स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, फिर बंद कर देते हैं, अगर कहीं पर अटक जाते हैं तो फिर अगेन पढ़ना शुरू करते हैं, फिर बंद कर देते हैं, फिर पढ़ना, वो कभी खत्म नहीं कर पाते उस चीज. They never finish that, right? और वो मिड में आके बोलने लगते हैं कि हाँ मैंने कर लिया, मुझे आता है, बट नहीं आता. इसके आगे दुनिया शुरू होती है जहाँ पे हमने बंद करते. राइट. सो मुझे लगता था उस टाइम तक मुझे लगता था कि क्या ही डिफिकल्ट होगा प्रोग्रामिंग में. ऐसा क्या होगा जो मुझे नहीं आता? क्या मुझे सिंपल नहीं आते? आते हैं. क्या मुझे इंग्लिश नहीं आती? आती है. हिंदी आती है. तो ऐसा क्या ही डिफिकल्ट होगा उसमें, राइट? मैं मैकेनिकल से फाइनल ईयर में आ चुका हूँ. मैं ऐसी इक्वेशन सॉल्व कर चुका हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करती रियल लाइफ में. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पे 3 पेज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर चुका हूँ. ये क्या ही होगा इसमें, ठीक है? बट वो फिर मुझे नहीं हुआ. मैं बहुत कंफ्यूज हो गया उन सारी चीजों में. फिर से मैं अपनी किस्मत को मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि यार अपना ना लग यही है, जाना अपने मैकेनिकल की इंडस्ट्री में ही है, ठीक है? छोटी सी मैकेनिकल इंडस्ट्री मिलेगी, अपने यही करना है, हमारी किस्मत में ये लिखा है. सबकी लाइफ में होता है. सब एक बार ना सब ये सोच के बैठते हैं कि भाई अपना तो बस यही है, हम कुछ नहीं कर पाते, ठीक है? बट देन अगेन यार हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है. जो है वो भगवान करते हैं. तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगेन आई मेट विद साक्षी मैम. पता नहीं कैसे कॉरिडोर में चलते थे. तो शी सेड, ओके हाय विवेक, कैसे चल रही है आपकी प्रिपरेशन? आई वाज लाइक, मैम प्रिपरेशन तो बंद कर दी मैंने. तो अगेन शी वाज लाइक, उन्होंने फिर से मुझे समझाया कि क्यों बंद कर रहे हो, मतलब ये तो सबके लाइफ में होता ही है ना. तो देन आई अगेन स्टार्टेड लर्निंग थिंग्स. तो मेरी स्क्रीन पे ना उस टाइम पे एक नोटिफिकेशन पॉप अप हुई. एक वेबिनार था, नहीं एक्चुअली सेमिनार था, एक्चुअली द वर्कशॉप. बेसिकली वर्कशॉप कहना ठीक रहता है. वर्कशॉप थी ऑन द टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है? और उससे पहले मैं मैकेनिकल के बहुत सारे सॉफ्टवेयर सीख चुका था. सॉलिडवर्क्स एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर होता है, आई एक्सेल इन दैट एज वेल. उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर होते हैं, कैड का एक सॉफ्टवेयर होता है, ऑटोकैड, वो मैंने सीखा, ठीक है? तो ये सारे सॉफ्टवेयर मेरी फिंगर टिप्स पे. तो देन आई केम नोएडा, आई जॉइंड दैट वर्कशॉप, एंड फ्रॉम दैट वर्कशॉप मुझे इनिशिएटिव मिला कि मुझे करना क्या, राइट? देन आई मेट एक यूट्यूबर है, वन ऑफ द बेस्ट यूट्यूबर आउट देयर, जो प्रोग्रामिंग सिखाते हैं. आई नो आप जानते हो या नहीं जानते. हिज नेम इज हर्षित वशिष्ठ, ठीक है? तो वो पाइथन एंड ऑल पढ़ाते हैं. तो जब वो मिले तो देन मुझे एक रास्ता मिला कि मुझे करना क्या है, ठीक है? सो ही गाइडेड मी अलॉट कि भाई कुछ नहीं है, तो मैं तो यार भैया मुझे बता दो क्या करना है क्या नहीं करना. तो everything I learned programming I learned with this video, right? So one thing he said to me कि Vivek, if you are going to start from now ना, तो आपको रुकना नहीं है. कोई चीज समझ में नहीं आ रही, नहीं आया, आगे बढ़ते रहना. आपको एक वीडियो समझ नहीं आएगी, 2 वीडियो, 3, 4, 5, 10, तो मैं कह रहा हूँ पूरा कोर्स ही समझ नहीं आ रहा ना, इसी में जाना तो इसी में है ना भाई. I said हाँ, फिर करते रहो. तो मैं बस वही उनके करता रहा, जो बोलते गए मैं करता गया. So that's how I became a good programmer. ठीक है? Then I went to Bangalore and learned machine learning out there. Then I came back to Noida, did artificial intelligence, deep learning and all. तो मैं उस टाइम पे इतना ज्यादा इंडल्ज हो चुका था ना इन सारी चीजों में, मुझे बाकी दुनिया दिखनी बंद हो गई. मुझे कुछ नहीं दिख रहा उस टाइम प्रोग्रामिंग के अलावा. मतलब मैं अगर नींद में सो भी रहा हूँ ना, तो सपने में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. एंड ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. दिन में कोई प्रॉब्लम आई मेरे सामने, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया, बट मैंने उसको सपने में सॉल्व कर लिया. राइट. पूरा स्टेप मुझे याद होते थे, तो अगले दिन उठ के मैं उसको सॉल्व करता हूँ. और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. राइट. तो दैट्स हाउ माय कॉलेज जर्नी वेंट, एंड देन आई टुक इनिशिएटिव एंड ऑल. आगे डिस्कस करते हैं उस बारे में. यू कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप इतना इनफ है. This is a crazy description of your whole journey, right? मतलब ऐसा है कि इसमें इतने सारे ups and downs हैं, and there is a lot to learn overall इस सब चीज से, that how should actually a person deal with failures, right? And even after like facing so many a lot. Like after even facing so many issues, you just kept moving further, right? आगे बढ़ते बढ़ते you just started sorted the way for you, and बड़ी common situation है. मतलब सबकी लाइफ में ना problems आनी है, whatever you decide to do, है ना? There will be problems and you just need to find the right way to actually drive through that particular problem, right? Like this podcast is going to be amazing. I can absolutely say because you have already been through a lot, and definitely your experience will actually help a lot of students, right?
So now, अब जितनी जर्नी रही है, there is, I'll try my best. you have already acquired a lot of skills अभी तक. Like जितने भी आपने ups and downs वगैरह face करे हैं उस चीज से होते हुए. So any tips for the students? Like what are the most important skills that the students should actually focus upon when they're targeting management or technology? Because you have been through both the industries. Okay, so yeah. So, like if I talk about the challenges and the path, so basically there are two different things. The first will address the challenges, then we'll find out the path. Because if you are not, पहली चीज तो मुझे लगता है कि अगर आप चैलेंज ही नहीं फेस कर रहे हो ना, तो फिर आप राइट पाथ नहीं ढूंढ, राइट, ठीक है. बट बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा कि यार उनको चैलेंज ही नहीं आया कोई, ठीक है, वो सब कुछ ठीक हो गया. वो एक शायरी थी, एक कोट मैंने पढ़ा था कि किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह सारी उम्र सफर में ही रहा. सही बात है. तो ऐसा भी होता है, लेकिन हम लोग मैक्सिमाइज चांसेस लेके चलेंगे. 1% को छोड़ देते हैं, 99% को लेके चल रहे, है ना. तो चाहे देखो स्टूडेंट चाहे मैनेजमेंट का हो या फिर वो टेक का हो, ठीक है, उसको एक चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इस दुनिया में अभी जितनी भी चीजें चल रही हैं वो टेक के बेसिस पर ही चल रही है, ठीक है. मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा मैनेजमेंट का अब मैनेजमेंट में अगर सबसे सुपीरियर पोजीशन हम लें, या फिर अगर मैं एमबीए या फिर बीकॉम एंड ऑल की ड्रीम की बात करूं, तो मैक्सिमम लोगों का ड्रीम होता है कि मेरे को सीए बनना है, ठीक है. So I personally know a lot of CAs during when I started my own startup. उस टाइम पे भी जो मेरे फ्रेंड्स बने वो भी, जब मेरा फ्रेंड सर्कल ग्रो अप हुआ तब भी. So I personally know a lot of CAs. और वो भी आज के टाइम में इतने टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट हैं. और मैं डिपेंडेंट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि उनकी हेल्प करती है टेक्नोलॉजी, ठीक है. तो वो चीजें तो उस चीज को तो हम नेग्लेक्ट नहीं करते, ठीक है. आज से कुछ टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो पहले क्या होता था कि बीकॉम वाला बंदा है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी इतना मैटर नहीं करता, है ना, राइट. अभी टेक्नोलॉजी बहुत, राइट. चाहे आप कंपनी में किसी मैनेजमेंट रोल पे हो, चाहे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रोल पे हो, या फिर आप चाहे आप सेल्स में ही क्यों ना हो, या फिर आप मार्केटिंग में हो, है ना, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर आप हो सकते हैं, राइट. और अगर टेक की बात, एज अ डेवलपर हो सकते हैं, टेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, डेटा साइंटिस्ट हो सकते हैं, बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आप हो सकते हैं. तो देयर आर लॉट्स ऑफ फील्ड्स आउट देयर. बट इन सब में जो एक कॉमन प्रॉब्लम है अगर स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो ये है कि मैं चीजें सीखूं कहाँ से, राइट. आप उस मेरी बात से एग्री करना कि जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता कि स्टूडेंट में जो हमें करिकुलम सिखाया जा रहा है वो तो कहीं यूज ही नहीं, राइट, क्योंकि मोस्ट ऑफ इट यूज ही नहीं है. मतलब इंडस्ट्री में तो कुछ और ही चल रहा है और हमें कुछ और पढ़ाया जा रहा है. तो आधे टाइम तो हम इसी टेंशन में रहते हैं कि यार मैं पढ़ूं क्या. और मैंने अपनी जब मैं स्टूडेंट को गाइड भी करता हूँ, आई हैव बीन लॉट्स ऑफ सेमिनार्स एंड लॉट्स ऑफ अराउंड 100+ सेमिनार्स मैं कर चुका हूँ कॉलेज में. 100+, दैट्स अ ह्यूज नंबर, राइट. एंड इफ आई टॉक अबाउट कितने स्टूडेंट्स मैं मिल चुका, दैट्स क्रॉस अराउंड 1 लाख. 1 लाख आराम से पहुंच चुका हूँ, ठीक है. तो उन सब में ये बात कॉमन थी. अगर मैं कोई चीज किसी को समझा रहा हूँ कि भाई देखो तुम्हें सबसे पहले प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, ठीक है. अगर आप एक फाइनल ईयर के स्टूडेंट तो आपको प्रोजेक्ट पे फोकस करना है. आप चाहे मैनेजमेंट के भी क्यों ना हो, आपको प्रोजेक्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है. मतलब रियल चीज आप क्या करते हो. ही वाज लाइक सर बात ऐसी है कि पहले तो कॉलेज क्लासेस से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं कॉलेज के सब्जेक्ट पढ़ूं या प्रोजेक्ट पढ़ूं. तो इस बात पे मैं बहुत ज्यादा हंसता हूँ एक्चुअली, क्योंकि मैंने पर्सनली बताऊं तो मैं कभी कॉलेज की क्लासेस मिस नहीं, मैंने कभी कॉलेज की क्लासेस मिस नहीं, ठीक है. मुझे लगता है यार जो स्टूडेंट इन सब प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, वो वही होते हैं जिन्होंने जो कॉलेज क्लास मिस करते हैं. आई एम टेलिंग दैट्स अ फैक्ट. बिकॉज जब टीचर आपकी क्लास में आया है ना, तो वो आपको टॉपिक पढ़ाने नहीं आया सर, जो पढ़ के आया, ठीक है, वो अपने साथ अपने लाइफ का एक्सपीरियंस लेके आया, ठीक है. तो जो एक्सपीरियंस अब एक बहुत फनी चीज मैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, बहुत फनी चीज बताता हूँ, है ना. तो यार ये ऐसा है कि स्टूडेंट जो है ना वो यूट्यूब पे सर्च करता है, एक पाथ मिल जाए मेरे को, मैं कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, मैं कैसे चीजें करूँ, कोई गाइड करने वाला मिल जाए, कोई एक वीडियो मुझे ऐसी मिल जाए जिसने स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज समझा रखी है, ठीक है. और वो ये भूल जाता है कि भाई मेरे कॉलेज में 8 से 9 टीचर लगा रखे हैं मेरे ऊपर, 8 से 9 टीचर जिनको अपनी पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो डेली मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि भाई क्लास तो लो. हाउ कैन आई फॉरगेट देम. मैं उनसे क्यों नहीं पूछता ये चीज. मैं YouTube पे क्यों ढूंढ रहा हूँ, मैं क्यों अपना घंटों वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई मेरे को एक परफेक्ट मिल जाए मेरे को. अब यहाँ पे कुछ कैंडिडेट बोलेंगे सर वो बताते ही नहीं, वो कहते हैं बाद में बताएंगे, वो कहते हैं पहले ये पढ़ लो. तो भाई अगर वो कह रहे हैं कि पहले ये पढ़ लो तो पहले वही पढ़ना इंपॉर्टेंट है. वो जो आपके सामने खड़ा हुआ कोई गुरु है, राइट. बट मैं नहीं मानता कि आपकी जितनी भी ऑडियंस होगी मनीष, राइट, ठीक है, I would like to add a call over here. एक कॉल आप ऐड करना कि अगर हम कोई अपनी पर्सनल लाइफ, अपने कोई प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन हरी क्लास में पूछेंगे तो मे भी टीचर उसको इग्नोर करते, डेफिनेटली, राइट. मे भी वो उसको वहां पे ना बताए, बट इफ यू गो टू हिज और हर केबिन नो, तो वो आपको बहुत प्यार से बैठाएगा, बहुत प्यार से समझाएगा, राइट. बट हम जाते ही नहीं, राइट. और
क्वेश्चन ये है कि कितने स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि वो टीचर के केबिन में गए, उन्होंने उसको भगा दिया कि मैं नहीं बताना चाहता, नहीं बताता मुझे, ठीक है, चाहे वो क्लास में कितनी ही मतलब कितना ही बदतमीजी करता हो या शोर करता हो, टीचर फिर भी उसको बताए, राइट। तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है ना स्टूडेंट्स की वो यही है कि हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं हर चीज, हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं हमारे आसपास क्या है, ठीक है। तो अगर मैं सम करूं इस चीज को समराइज करूं तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को जो बेसिक क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी ने सेट किया है उस पर फोकस करना चाहिए, राइट। प्रोजेक्ट आर मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर एक प्रोजेक्ट आपका बेस्ट है ना, मैं लिख के देता हूँ आपको, एक प्रोजेक्ट आपको जॉब दिला सकता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट आपको जॉब दिला सकता है। अगर आपका प्रोजेक्ट अमेजिंग है ना, और वो अगर आपने खुद से बनाया, अगर आपने कॉपी नहीं किया, अगर आपने इंटरनेट से नहीं ढूंढा उसका कोड, या मैनेजमेंट में भी अगर आपने जो केस स्टडीज की है, अगर वो आपने खुद से केस स्टडीज करी है, ठीक है, आप प्रॉब्लम जानते हो, आप उनके क्वेश्चंस जानते हो, आप उनके प्रॉस कौन सब जानते हो, एक अच्छी फाइल आपने डिजाइन की है, उसको लेके अगर आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो ना, कोई इंटरव्यू आपको फेल नहीं, कोई भी इंटरव्यू आपको फेल नहीं कर सकता, एक भी नहीं, ठीक है। और मैं ये भी श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा है ना, तो इंटरव्यू का मतलब ही नहीं है वो आपसे फालतू के क्वेश्चन इधर उधर पूछे, वो उसी प्रोजेक्ट का पूछे, अगर आपने उसको रेज्यूमे में अच्छे से मैच किया। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये कि अपनी लाइफ में इतने सारे फेलियर देखने के बाद, जब मैं अपना बेस्ट वर्जन निकाल के लेके आया ना, तो जब से मैं ग्रेजुएट हुआ, टिल द टाइम आई ग्रेजुएटेड एंड टिल नाउ, मैंने जितनी भी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिग फोर, मतलब जितनी भी दिया, चाहे वो स्टार्टअप है, चाहे वो यूनिकॉर्न है, या वो एक मीडियोकर कंपनी है, या कुछ भी है, आई नेवर एवर फेल्ड, नेवर एवर इन माय, एक भी इंटरव्यू ऐसा नहीं हुआ आज तक जो मुझे फेल, थैंक गॉड, ऐसा होना चाहिए सबके साथ में। बट मैं बता रहा हूँ ये चीजें क्यों नहीं, क्योंकि आपकी केस स्टडी आपकी होनी चाहिए, आपका प्रोजेक्ट आपका होना चाहिए। जब मैंने भी इंटरव्यूज लिए हैं, तो स्टूडेंट के प्रोजेक्ट जो मेंशन होते हैं ना रेज्यूमे में, उनको पता ही नहीं होता इसमें है क्या, तो व्हाई शुड आई सेलेक्ट? अगर आपको पता ही नहीं, आपने लिखा, आप मत लेके आओ प्रोजेक्ट, यार कोई प्रोजेक्ट मत लेके, आप ब्लंटली बोलो मैंने नहीं बनाया कोई प्रोजेक्ट, आई एम वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है, बट आई हैव बीन लर्निंग दीस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आई हैव कोडिंग फ्रॉम दिस, मैंने ये केस स्टडीज पढ़ी है, मैंने फाइल नहीं बनाई, ठीक है, तो आप अपफ्रंट रहो ना। तो ये प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट्स की, में जो उनको सॉल्व आउट करने चाहिए, राइट। And I totally relate to this thing, और बहुत ही रिलेटेबल आंसर, बहुत ही स्पेसिफिक आंसर है, राइट। बिकॉज इसी पर्टिकुलर आंसर में इतने सारे टेकअवेज थे स्टूडेंट्स के लिए, दैट जो भी वीडियो देख रहे थे इस पॉइंट तक, अगर वो नोट डाउन भी करें तो दे कैन एक्चुअली सॉल्व मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट दे आर फेसिंग अभी आज की डेट में। एग्जैक्टली। So exactly, yeah, and I'm very thankful that you're sharing so much of your experience इस point तक, right? Let's move to the next part. And जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था, you have already answered the question in the past 2 answers. So मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछूंगा, right? I'll just move to the next question. That is, how do you actually try to evaluate the business opportunities, right? Whenever you're just planning. How do I the business opportunities? Okay, so इस क्वेश्चन के ना 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। Actually, business opportunities are for those who are working in corporate or who are building their own thing, right? And if I talk about students, so for them it's an interview opportunity, right? How do they evaluate the interview opportunities, their career opportunities? And if I talk about business opportunities, so finding a business opportunities are there are lots of steps, tools, and एक funnel है, right? ठीक है, सेम चीज स्टूडेंट के लिए भी एक funnel है ना। सबसे पहले तो connections are most important, right? Connections play a vital role in business opportunities, ठीक है। And if I'm going to find a company, मुझे अगर जॉब स्विच करनी है, या मैं एक फ्रेशर हूँ, मुझे एक जॉब चाहिए, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूँ? मेजर क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सर आप बता रहे हो कि आप इंटरव्यू में क्या करना है, आप बता रहे हो प्रोजेक्ट बनाओ, मैं ये शो किसको करूँ ले जाके? ठीक है, आपने कहा मैंने प्रोजेक्ट बना लिया, बट दिखाऊं किसको? कोई बंदा देखने को रेडी नहीं है, मुझे इन्विटेशन ही नहीं आ रहा, मैं उसको कैसे फाइंड करूँ? ठीक है, तो मोस्ट कॉमन थिंग जो हम मिस करते हैं ना, वो होता है पीपल से बात करना। हम बात ही नहीं करते, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूँ ना, जनरली बात करूँ, ठीक है, तो अगर एक कॉलेज है ना, और वो एक टियर 2 सिटी का कॉलेज, राइट, ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टियर 3 सिटी, टियर 2 सिटी का कॉलेज है, जैसे मान लो हम गाजियाबाद की बात कर रहे हैं, नॉट एंड अलग चीज की बात करते हैं, ठीक है, टियर 2 सिटी का कॉलेज है, और उसमें एक क्लास में अगर मान लो 200 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूँ ये बात कि 50% की फाइनल ईयर तक आते आते लिंक्डइन आईडी नहीं, they even do not have a LinkedIn ID, right? Why? Can you have an Instagram account? अगर उनकी है भी ना, तो वो एक्टिव नहीं है उसमें, राइट, उनके फोन में LinkedIn का ऐप ही नहीं, बनाने के लिए बना रखे वैसे। तो सी, जब हमें एक
हमें अगर अपने पोस्ट पे एक अच्छा कमेंट चाहिए, हम अगर कहीं घूमने गए, हम जब उसको शोकेस करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है, जब हम नए फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, नया फ्रेंड सर्कल ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। हम हंसना चाहते हैं, इंस्टाग्राम का यूज करते हैं। हम एंटरटेन होना चाहते हैं, हम किसी इंस्टाग्राम या अदर प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। तो जब हम कोई अचीव किए किसी चीज को, जब हमने कोई सर्टिफिकेशन किया, तो हम उसको लिंक्डइन पे क्यों नहीं शो करते? राइट। जब हम इंस्टाग्राम पे कोल्ड डीएम सेंड करने से नहीं रुकते, ठीक है, तो हम लिंक्डइन पे क्यों नहीं सेंड करते कोल्ड डीएम? टेल मी। जब हम इंस्टाग्राम पे, ठीक है, किसी को भी सेंड कर रहे हैं ना, अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक जनरल पर्सपेक्टिव लूं, ठीक है, देयर आर ऑल एडल्ट्स, दे आर ऑल यंग्स, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय, देयर आर ऑल एडल्ट्स एंड यंग, ठीक है। हम करते हैं ना कोल्ड डीएम्स, हम करते हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी की फोटो अच्छी लग रही है, ठीक है, आई वांट टू अप्रिशिएट, आई हैव फीलिंग्स, तो मैं उसको बोलूंगा, ऑफ कोर्स बोलूंगा कि हे यू लुक फैबुलस, ठीक है, योर ड्रेस इज गॉर्जियस, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे एक्सप्रेस कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिंक्डइन पे क्यों नहीं कर रहा यार? सही बात है, क्यों नहीं कर रहा लिंक्डइन पे? सपोज देयर इज एचआर, उसने एक अचीवमेंट किया, उसने अपने अचीवमेंट का पोस्ट किया, तो मैं क्यों उस पे कमेंट नहीं करता कि हे मनीष, यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, राइट? तो एक नोटिस में आऊंगा ना मैं उसके कि अच्छा यार, विवेक इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस एंड ही इज अप्रिशिएटिंग इट। मे बी ही विल रिप्लाई मी बैक, थैंक यू विवेक, राइट? तो देन आई कैन रीच टू हिम, राइट, और हर via LinkedIn DM कि hey Manish, I am a final year graduation student and these are my achievements. If there is any opening in your company, please do that. ठीक है, and trust me, ये चीज वर्क करेगी। और कहाँ से ढूंढे बिजनेस अपॉर्चुनिटी? राइट, मैं थोड़ी ना है ना, इतने सारे स्टूडेंट है, थोड़े ना मैं कंपनी कितने को रीच करेगी यार? राइट। हम लोग एक्चुअली क्या है ना, हम लोग खुद से कुछ नहीं करते, हम लोग डिपेंडेंट होके बैठे हैं। कॉलेज, एक कॉलेज मेरे लिए कंपनी लेके आए, राइट, ठीक है, भैया कॉलेज करके देगा, मैं कॉलेज का फीस दे रहा हूँ, वो करके देगा, और अगर वो नहीं कर पा रहे तो फिर कॉलेज कर, ठीक है। आप मेरे को बताओ ना, आपने कितने एफर्ट लगाया अपनी जॉब, राइट? देयर आर सर्टेन स्टूडेंट जो करते हैं इस चीज को और उसके बाद उन्हें सक्सेस नहीं मिलती, बट ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है यार कि आप हमेशा फेलियर हो, राइट? ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपको मिले ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको जो टारगेट करना है, मैं कौन सी कंपनी आपको टारगेट करना है, ठीक है, जहाँ पे आपको सीखने के लिए, ओके, यहाँ पे एक छोटा सा मैं टाइम लूंगा, ठीक है। एक बहुत अच्छा टिप है, बहुत अच्छा टिप है, डेफिनेटली। एक कोट है, मैंने पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि आई गेस, आई डोंट नो, पढ़ा था या रील थी या क्या था, उसमें एक बहुत ही अच्छे बंदे ने कहा था कि भाई, इफ यू आर अ टेक स्टूडेंट, राइट, इफ यू आर अ टेक स्टूडेंट एंड यू हैव अ मॉडरेट नॉलेज इन टेक, एक्सपर्ट तो कोई नहीं होता, बट आपको अगर ठीक ठाक नॉलेज है टेक की, तो डोंट गो फॉर अ फर्स्ट जॉब जिसमें आप कोड नहीं, ठीक है। ऐसी जॉब आपको नहीं ज्वाइन करनी है जिसमें आप कोड नहीं लिखते, ठीक है। उसका रीजन क्या बताऊंगा, एंड इफ यू आर नॉट फ्रॉम टेक, इफ यू आर फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, so don't go for a job जहां पे आपको केस स्टडीज नहीं मिलती, राइट? जहां पे आपको अगर आप मार्केटिंग के हो तो जहां आपको एड कैंपेन बनाने के लिए नहीं मिलता, जहां पे आपको एड अकाउंट के अंदर क्या चल रहा है वो ही नहीं पता, जहां पे बस जो लीड्स आ रही है उसको आपको एक्सेल शीट में फिलअप करा रहे हैं, डोंट गो विद दैट, राइट? एंड इफ यू आर मैनेजमेंट स्टूडेंट्स एंड, चलो इसकी बात आगे करेंगे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर करता हूं कि आप अगर टेक के स्टूडेंट तो आपको ऐसी जॉब क्यों नहीं चूज करनी जिसमें आप कोड नहीं लिखते? पहली बात तो ये कि जब कॉलेज में प्लेसमेंट होते हैं ना, तो वहाँ पे हर तरह की कंपनियां, राइट, टेक भी आ रहा है, प्लस वहाँ पे ऐसी कंपनीज भी आ रही हैं जो सेल्स के लिए हायर कर रही हैं, ठीक है। वो लोग भी ऐसा कैंडिडेट ढूंढ रही हैं जिनको टेक की अच्छी नॉलेज है, राइट, जो आईटी सेल्स में, और वो 100% आपको एक बेटर पैकेज ऑफर करते हैं, राइट, ठीक है, राइट। वो आपको मे बी 6 LP ऑफर कर सकते हैं, वो आपको 7 LP ऑफर कर सकते हैं, और हो सकता है कि कोई टेक कंपनी आपको 3.5 LP ऑफर करे, ठीक है। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, ठीक है। 4 LP पे ऑफर करती है। तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक 4 LP की जॉब मिल रही है और आपको एक 7 LP की जॉब मिल रही है जहां पे आप कोड लिख रहे हो, जहां पे कोड लिख रहे हो, तो यू शुड चूज अ जॉब वेयर यू आर राइटिंग द कोड। व्हाई? इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, लेट्स मीट 4 years from now, okay, and you will see your progress, you will see where you are in 4 years on, and you will compare yourself, you will see your peace, you will see the money crediting in your account, you will see the knowledge you have gained these 4 years, and you will be proud on yourself that you what have chosen, right? तो उसके पीछे ये रीजन, क्योंकि अगर आपने पहली जॉब में कोड नहीं लिखा तो आप दूसरी में नहीं लिखे, राइट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप टेक के स्टूडेंट हो तो आप सेल्स में काम कर ही लोगे, जरूरी नहीं है आप टेक के स्टूडेंट, आप मार्केटिंग, रिसर्च, इन सब में काम कर ही लोगे, नहीं होगा, ठीक है। और 3 महीने 6 महीने बाद जब कंपनी आपको निकाल देगी या आपसे नहीं होगा, खुद रिजाइन दे दोगे, उसके बाद जब 6 महीने आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाएगी ना, फिर आप वापस से टेक की तरफ नहीं देखो, फिर आप कोई जॉब मिल जाएगा, सैलरी आना बंद हो गई, क्योंकि 6 महीने में आपने एक्सपेंस बढ़ा चुके हो, राइट, ठीक है। और उसके बाद आप टेक की तरफ नहीं जाओ, और अगर जाना भी चाहोगे तो आपको वो जो 6 महीने आपने काम किया है उसको वैनिश्ड आउट करके आपको गैप शो करना पड़ेगा, और अगर आप ये शो करोगे मैं पहले वहां काम करता था, तो आपको बहुत प्रूफ करना पड़ेगा,
राइट क्योंकि 6 महीने में आप वो सब भूल चुके होंगे जो आप 6 महीने पहले आपको पता बताएंगे। राइट ठीक है, इट्स ऑल अ प्रोसेस, इट्स अ ह्यूमन ब्रेन। जिस चीज में हम काम करते हैं हमारा ब्रेन उसी को कैप्चर राइट राइट। तो कोल्ड ईमेल्स भेजो, कोल्ड कनेक्शंस भेजो, कोल्ड डीएम्स भेजो लिंक्डइन पे, अपने कनेक्शंस बिल्ड करो, मैसेज करो यार, मैसेज करो। मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, हाँ मैं ढूंढ रहा हूँ जॉब, मैं फ्रेश हूँ, मुझे चाहिए जॉब, आपको बंदा चाहिए, मैं बैठा हूँ, आप इंटरव्यू लो। राइट ठीक है, दैट्स हाउ वी फाइंड आउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जब कंपनीज लीड्स फाइंड करने के लिए, बिजनेस फाइंड करने के लिए लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हैं, कोल्ड डीएम, कोल्ड ईमेल मार्केटिंग, ये सब कर सकते हैं, प्लेसमेंट क्यों नहीं करना? डेफिनेटली दे लाइंग बिहाइंड इस चीज में। और लाइक इट इज नॉट ओनली अबाउट दी कि बच्चे नहीं कर रहे, बच्चों में इच्छा नहीं है करने की, राइट? अभी के लिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट इवन विलिंग टू डू इट, राइट? मतलब उनका आई एग्री विद इट। उनको अब हम लोग दुनिया भर का ज्ञान दे सकते हैं, राइट? द थिंग इज कि वी कैन गिव देम अ होल थॉट कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, बट दे आर नॉट विलिंग इनफ बिकॉज़ दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ प्रेशर। काफी लोग पे हैवी नहीं प्रेशर, राइट? और जिन पे है दे आर ऑलरेडी हसलिंग। क्यों क्वेश्चन ये, ठीक है, एवरीवन नोज दैट कि दे आर नॉट विलिंग टू डू, राइट, बट द क्वेश्चन इज व्हाई, राइट? डोंट दे वांट टू अर्न मनी, राइट? डोंट दे वांट टू बाय अ कार, डोंट दे वांट टू गेट सेटल इन देयर लाइफ? बताओ, नहीं करना चाहते क्या वो? डेफिनेटली करना चाहते हैं ना। पर द थिंग इज कि सेलिंग क्यों नहीं है फिर? the condition that they are in at this point, right? उनका family condition very different हो सकता है, right? The environment they have grown into वो भी बहुत अलग हो सकता है, right? हो सकता है कि they already have some settled business। मतलब काफी लोगों का perspective बहुत अलग है, you know। अगर एक 100 बच्चों के pool में there are around 60% students Your who voice is lacking. Your voice is lacking. yeah, so what is happening is that एक 100 बच्चों के pool में से around 60% students are like not at all considering the degree even, you know, they're just there for pursuing the degree, right? वो करने ही नहीं आ रहे पढ़ाई उस हिसाब से, राइट? और मतलब दिस इज द डिलेमा ऑफ द ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम अभी, बिकॉज 100 बच्चों का बैच है एंड 60% स्टूडेंट्स आर नॉट इवन विलिंग टू पुट इन एफर्ट्स, क्लास नहीं आना, कुछ नहीं करना, राइट? सो व्हाई वुड दे इवन कंसीडर मेकिंग द लिंक्डइन अकाउंट? यू नो, वी कांट चेंज एवरीवन, राइट? बट द 40% स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली फोकस्ड and actually looking for the right opportunity, so they are actually investing a lot, right? They might be lagging the right path, that how should they actually carry on the process, right? But they are actually trying to search about it, some of them, and those are the people who are actually succeeding as well, right? मतलब जो नहीं कर रहे उनको तो हम दिखा करके भी नहीं सिखा सकते, बट जो करना चाह रहे हैं वो तो खुद देख देख करके सीख जाते हैं, राइट? क्योंकि they are hustling for themselves, right? And that's what is happening, and this is a very fair insight about the whole industry that you have shared, right? मुझे तो ऐसा लगता है ना, हाँ, लाइक मेरा पर्सपेक्टिव तो ये, मुझे तो ऐसा लगता है कि हसल में तो मजा है, डेफिनेटली। सोने में कोई मजा नहीं, सोने में कोई मजा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आप सो रहे हो ना तब तक आपको मजा है, राइट? सेम गोज फिर हसल में, जो मजा हसल में है वो नहीं किसी भी चीज में। आपने कोई ऐसा बंदा देखा है जो जिम जाता है, जो साइकिलिंग करता है, ठीक है, जो स्विम करता है, ठीक है, उसकी बॉडी में तो पेन हो रहा है, पेन और आपको पेन हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी उस लौट के जा रहा है, आपको मजा आ रहा है, ठीक है। 1 साल में बॉडी नहीं बनती, 2 साल में बॉडी नहीं बनती, 3 साल में बॉडी नहीं बनती, नहीं बनती यार, नहीं बन रही लोगों, ठीक है, बट वो कर रहे हैं ना उस चीज, मजा आ रहा है उनको, वो सो तो नहीं रहे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप पूरे 4 साल अपने कॉलेज हॉस्टल में सो के बिता दो, किसी को कोई फर्क नहीं, राइट? ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला किसी को, ठीक है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर आप टेक में अच्छे नहीं हो तो आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप कर लोगे, देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, आप कुछ भी कर कुछ भी कर लोगे। मैं तो कहूंगा कोई भी काम बुरा है ही नहीं भाई, कोई भी काम बुरा है। इफ यू आर अर्निंग गुड, इफ यू आर हैप्पी, तो मैं तो कहूंगा पानी पूरी बेच के भी खुश हो तो कोई बात नहीं हो, कोई बात नहीं है। वी हैव जस्ट सीन अ बड़ा पाव गर्ल, उसने अभी रिवील की अपनी इनकम, ठीक है, आप हम नहीं कमा रहे, वो कमा रही, ठीक है। तो एक्चुअली क्या है कि तुम्हें करना तो है, लेकिन कुछ भी भाई, अगर आपको बड़ा पाव भी बेचना है तो आपको बंद काटना तो पड़ेगा ना बीच से, राइट? आपको धूप में, मतलब जो गैस की स्टोव की हीट है उसको फेस तो करना पड़ेगा ना यार, राइट? And that's a perfect and fair enough insight about it. And ये reality है, मतलब ये ना, like बच्चों को accept करना बहुत जरूरी है, that actually how should they actually choose the right opportunities for themselves, right? मतलब they don't have the right approach to do it अभी भी, most of them, right? मतलब when we talk about the tier 1 colleges, तो उनके पास तो चलो ठीक है, they have mentoring, they have guidance, सब कुछ है उनके पास, right? But जो tier 2 and tier 3 colleges आ जाते हैं, so most of the students are just there for the degree, right? And that's how they're just, you know, fooling themselves. सच्ची बात है ना, खुद को झूठ बोल रहा है इंसान, and जब इंसान खुद को झूठ बोलने लगे तब तो क्या ही बोल सकते हैं उसको। देखो अब हमने अगर ये सब बात की है ना, तो लेट्स गिव अ गुड गाइडेंस टू द स्टूडेंट, राइट? अगर हमने ये बात कर ली है तो एक गाइडेंस है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है tier 2 tier 3 सिटी का, राइट, और अगर वो टेक बैकग्राउंड, तो उसको करना क्या? मैं बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ, क्योंकि मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन की वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग थी, इवन दो आई वेंट टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस एंड, ठीक है। तो वो कैसे हुआ? तो सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट किस चीज में कंफ्यूज, वो इस चीज में कंफ्यूज है कि मैं करूं क्या, राइट? मैं वेब डेवलपमेंट करूं, मैं ऐप डेवलपमेंट में जाऊं, मैं कौन सी प्रोग्रामिंग पढ़ूं? कोई बोल रहा है सी पढ़ लो, कोई बोल रहा है जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, ठीक है, डेटा साइंस में चले जाओ। फिर अगले दिन किसी भैया ने कहा कि डेटा एनालिस्ट में चले जाओ, फिर अगले किसी भाई ने कहा कि भाई ये सब तो बहुत कॉम्पिटिटिव है, आपको मशीन लर्निंग करना है, ठीक है। फिर वो करने लगा,
फिर उसमें वो उससे हुआ नहीं, ठीक है, फिर उसने यूट्यूब की एक वीडियो खोल ली, फिर उसमें लग रहा है कि उस यूट्यूब वीडियो का थंबनेल था कि अगर आप टेक्निकल बंदे हो तो डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए ठीक है, तो वो डिजिटल मार्केटिंग करने लगा, तो उसको नहीं पता होकर क्या, राइट ठीक है। तो Right. एक बहुत ही सही चीज मैं आपको बताता हूँ, देयर आर लॉट्स ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट गोइंग ऑन अराउंड द इंटरनेट, Right. यू नो ऑन एवरी स्टूडेंट्स पेजेस, a lot misleading, I think they should, government should take action against it। मैं तो कहूँगा इनको सजा होनी चाहिए जो ये इस तरह से कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर एक स्टूडेंट है तो नहीं पता मुझे करना क्या, राइट, ठीक है, सबसे पहले तो उसको लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी, अगर मैं कंप्यूटर साइंस का हूँ और अगर मुझे जाना आईटी में, मुझे ये लिस्ट बनानी है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं अभी मार्केट में। डजंट मैटर वो लिस्ट 10 पे आके रुके, 20 पे आके रुके या 100 पे पहुंचे, डजंट मैटर तुम उनको पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हो या एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को उठा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रो। आपको लिखना है, आपको पेन से लिखना है, मन में नहीं सोचना, आपको कंप्यूटर पे नोट नहीं लिखना, आपको पेन से लिखना है वो चीज, ठीक है। अब आपको वो चीज जो आपने टेक्नोलॉजी लिखी है, ठीक है, चाहे वो वेब ऐप, सीआरएम, सेल्सफोर्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपको ये देखना है कि उसको बनने के लिए करना क्या है। अगर मुझे डेवलपर बनना है, फुल स्टैक डेवलपर बनना है, तो उसमें ही बहुत चीजें हैं। फुल स्टैक डेवलपर आप जावा से ही बन सकते हो, फिर आप जावास्क्रिप्ट भी है। बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि अगर आप उनसे ये पूछोगे ना कि क्या आप HTML से वेबसाइट बना सकते हो, सिर्फ HTML, ठीक है, उनको तो ये भी नहीं पता कि आप सिर्फ CSS यूज करके वेबसाइट बना सकते हो, बोलेंगे हाँ, सिर्फ जावास्क्रिप्ट, उनको नहीं पता। तो वो एक्चुअली इसी चीज में घूमे हुए हैं कि फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है, एंगुलर, नोड, रिएक्ट, ये सब है क्या, ठीक है, जावास्क्रिप्ट है क्या, ठीक है, HTML फिर कहाँ यूज हो रहा है, फिर PHP कहाँ यूज हो रहा है, PHP क्या है, अगर ये सब अगर मैं ऐसे कर दूंगा, अच्छा किसी ने कहा था पाइथन, फिर जैंगो क्या है, ठीक है, फिर फ्लास्क क्या है, करता हूँ उससे भी सकते हैं, वेबसाइट तो उससे बन सकती है, और मैं कोड ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं तो वर्डप्रेस से बना सकता हूँ, राइट ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे शॉपिफाई है, वेबफ्लो है, मैं लिख क्यों रहा हूँ, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं ना, उनको इसी चीज में कंफ्यूज होने की जगह अगर वो उस चीज को लिखने के बाद वो एक चीज चूज करें, मान लो मुझे फुल स्टैक डेवलपर बनना है, डॉट, ठीक है, अब उसका स्टेप क्या है, HTML है, फिर CSS है, फिर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पकड़ूंगा, मान लो मैंने जावास्क्रिप्ट पकड़, अब मैं उसके फ्रेमवर्क पे जाऊँ, मान लो मैं नोड पे चला गया बैकएंड, मान लो मैं रिएक्ट पे फ्रंट एंड रिएक्ट के लिए चला गया, हो गया, बस इतने से जॉब मिल जाएगी। मैं लिख के देता हूँ, इतने से जॉब मिल जाएगी। अगर जॉब ना मिले तो मेरे पास आता है, मैं जॉब, राइट, अगर आपको इतना आता है, मैं सच बताऊँ, ठीक है। तो दैट्स हाउ स्टूडेंट शुड नॉट गेट इनटू डिलेमा, दैट्स हाउ दे शुड बी क्लियर इन देयर पाथ, राइट। करना क्या है भाई, लिखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा आंसर है। लाइक अगर स्टूडेंट्स इसको भी सुन करके इफ दे जस्ट स्टार्ट नोटिंग डाउन दी स्टेप्स, राइट, दैट हाउ कुड दे एक्चुअली लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स, एक बार किस पॉइंट से शुरू करना है, राइट, वो फिगर आउट कर ले, दे हैव अ गोल, राइट, वहां तक पहुंचना कैसे है, जस्ट प्रिपेयर अ वर्कफ्लो एंड स्टार्ट फॉलोइंग इट ब्लाइंडली, राइट, और जहां पे जरूरत पड़े फिर उसको थोड़ा सा चेंज करो, राइट, व्हेनेवर नेसेसरी, उस स्पेसिफिक स्टेप को चेंज करो, पूरे प्रोसेस को चेंज मत करो, राइट। तो लाइक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड विद दैट अप्रोच इटसेल्फ, है ना। And I'm very thankful that you have been contributing like these kind of answers to the podcast, and ये चीज बहुत ज्यादा influential और impactful है अपने आप में, because जो ये है एकदम ग्राउंड लेवल क्वेरीज जो कि बच्चों को होती हैं, राइट, एंड शायद हमें ग्राउंड लेवल पे ही चीजें सॉल्व करना ज्यादा जरूरी है इस पॉइंट पे, राइट, क्योंकि वहीं से भी बच्चे उठ नहीं पाते, राइट। मतलब ऐसी बात हो रही है कि इंडस्ट्री में टेक कितना बूम कर रहा है ना, राइट, कि अब ये नया आ गया, ये नया आ गया, लाइक देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज जो कि अभी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ना, ऑटोमेशन आ रही है बहुत सारी चीजों की, बट द थिंग इज कि बच्चों को भी बेसिकली क्लियर नहीं कि आप उनको वहां तक लेके कैसे जाओगे, राइट। आप बता तो दोगे कि ये है, बट हाउ टू एक्चुअली यूज इट। मैं तो ये कहूंगा मनीष के अभी तो AI मार्केट में ठीक से अभी तो AI जन्मा है, राइट, ठीक है। आप मेरे को बताओ, आप आज से 1 साल पहले, प्रॉपर 1 साल पहले तक आप ChatGPT को इतना यूज करते थे क्या? नहीं, 1 साल पहले। और लोगों ने, इंटरनेट ने, सो कॉल्ड टेक और करियर इन्फ्लुएंसर्स ने, राइट, बच्चों को ये डराना शुरू कर दिया कि AI तुम्हारी जॉब छीन, राइट। पहले उसे उस लेवल तक जाने तो दो यार, राइट, पहले उसे ये तो बताओ इंडस्ट्री में जाना कैसे है भाई तुमने। AI तो जॉब बाद में छीनेगा, पहले उस बेचारे को, मतलब ये क्या है यार, राइट, क्यों हम लोग कर रहे हैं कि AI जॉब छीन लेगा, ठीक है, छीन लेगा, दूसरी कर लेगा यार, उसको एटलीस्ट आगे तो बढ़ने दो। सही बात है, व्हाई डिमोटिवेटिंग द पीपल, मतलब शुरू से क्यों उसका मन जो उसने बना उसको आप खत्म कर दो, राइट। मैं यहाँ पे एक सॉलिड एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सॉलिड एग्जांपल ये है कि मैं बताता हूँ, मेरी एक फ्रेंड थी, ठीक है, और मैं ना उसको पढ़ा रहा था एक बार, ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है। तो वेब डेवलपमेंट चल रहा था, राइट, ठीक है। तो शी आस्क्ड के मैं क्या करूँ, तो ऐसा वेब डेवलपमेंट इज दैट वन थिंग यू कैन डू, ऐसा है वो कभी खत्म नहीं होगा, है ना। नई तरीके की वेबसाइट आ सकती हैं, उनके डिजाइन अलग हो सकते हैं, डिजाइन वेरी कर सकते हैं, बट वो खत्म तो नहीं होगा, ठीक है भाई। जब इंसान घर बनाना थोड़ी ना बंद कर देंगे, तो हम एक बिजनेस का घर कैसे तोड़ेंगे? बिजनेस का घर क्या है? वेबसाइट, तो घर तो बनेगा ना यार पहले, ठीक है। प्रोडक्ट कहाँ रखे जाएंगे? वहीं रखे जाएंगे,
सिंपल सी बात। तो क्या अब ये तो वही बात होगी कि यार घर कैसे बनाए यार, नई नई मशीन आ गई यार, अब तो घर वैसे बनने लगे, तो मैं क्या करूँ? तुम भी इवॉल्व हो जाओ यार। ठीक है, पहले जो घर बनाने वाले जो मिस्त्री थे वो हाथ से करते थे ना चीजों, है ना। अगर छत डालनी होती थी तो उसको भी हाथ से डालते थे, पर मशीन है तो उन्होंने भी खरीद लिया यार मशीन, राइट। वो भी मशीन से डाल रहे हैं, उनका भी काम इजी हो गया, वो भी ज्यादा पैसे ले रहे हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर उनको कोई डरा दे कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कल को तो घर मशीन बनाएंगे, वो डर जाते। ठीक है, उनको अगर ये बोलते कि भाई आप तो घर बनने बंद हो जाएंगे क्योंकि आप एक घर को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हो, क्यों बना रहे हो घर आप, तो भाई उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया ना कि हाँ ठीक है हम भी कर लेंगे फिर वो चीज। तो अगर एआई जॉब छीन लेगी तो जो काम एआई कर रही है हम एआई को बिल्ड कर लेंगे ना, हम उसी चीज को इंप्लीमेंट कर देंगे वेबसाइट पे, उसका एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे हम। राइट। कहां से जॉब छीन लेंगे? तो अब आधे टाइम हमने उसको पढ़ाया कि भाई ये पढ़ लो, ठीक है, ये प्रोग्रामिंग पढ़ लो, और मैं पर्सनली पढ़ाया। ठीक है, पर्सनली मैं एक एक चीज, एक एक क्वेरी सब सॉल्व किया। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, सर मेरे को तो लगता है एआई वेबसाइट बना सकती है, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं वेब डेवलपमेंट। ठीक है, और इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गई कि मेरे को तो वेब डेवलपमेंट मुझसे होगा ही नहीं, वेब डेवलपमेंट मैं करूँ क्यों जब तक एआई वेबसाइट बनाती है। अरे एआई कौन सी वेबसाइट, एआई वेबसाइट अगर लिख देगी तो वो बग फ्री कोड होगा क्या? मैं तो नहीं भरोसा कर सकता उस चीज। ठीक है, क्या वो टेस्ट भी खुद कर देगी क्या? बहुत सारी चीजें होती हैं यार, बहुत सारी चीजें होती हैं जो ह्यूमन चाहिए उस चीज के लिए। राइट। तो इतने ज्यादा लोग डर गए हैं, इन्फ्लुएंस हो गए हैं कि कौन उनके भले की बात कर रहा है, कौन जस्ट गेटिंग व्यूज एंड बेनिफिट ऑफ दैट, वो नहीं सोचते। Right. Now, like this is a fair enough takeaway as well. Now let's move to the networking part of the discussion, right? That अब बच्चों को एक जो मेजर प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, that is in terms of networking, क्योंकि काफी सारे लोगों को सही तरीका नहीं पता how to actually network with professionals, right? मतलब आप अपॉर्चुनिटीज, आपने स्किल बिल्ड करी, राइट, अब आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढोगे, राइट, अपॉर्चुनिटीज आप ढूंढोगे तो आप लोगों को आउटरीच करोगे। जैसे हमने भी पहले डिस्कस करा था इस बारे में कि एक्चुअली यू शुड स्टार्ट कोल्ड मैसेजिंग पीपल, है ना। अगर कंपनी करे तो हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। नाउ द थिंग इज कि हाउ एक्चुअली शुड द स्टूडेंट्स डू नेटवर्किंग, राइट, कि कैसे भेजना है, व्हाट शुड बी द राइट फॉर्मेट टू एक्चुअली अप्रोच पीपल, राइट। यार देखो मैं बताता हूँ ना, अगर सोचने बैठेंगे ना तो सोचते ही रहते। इंसान कभी परफेक्ट नहीं होता, कोई प्रपोजल परफेक्ट नहीं होता, कोई मेरिट परफेक्ट। ठीक है, हर एक प्रपोजल में जब हम क्लाइंट को भेजते हैं उसमें कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। डेफिनेटली जो प्रपोजल हमने कभी क्लाइंट को भेजा है हमसे बेटर दूसरी कंपनी डिजाइन करके बैठे। ठीक है, इट्स जस्ट अबाउट विल, कौन भेज पा रहा है, हिम्मत, दैट इज ओनली अ विल पावर। एक्चुअली बात गलत तुम्हारे मैसेज में नहीं है। ठीक है, गलती ये है कि हम यही सोच के बैठे कि यार मैं इसको भेजूंगा, ये बिजी होगा, Right. क्या पता ये मैसेज नहीं देखे, क्या पता ये गलत समझ ले। गलत समझ ले तो समझ लेना यार, जो बंदा हमें तो उसकी तलाश है जो हमें राइट समझ रहा है, सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना, कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं। जैसे हम इंस्टाग्राम पे कैसे मैसेज करते हैं, हाय माय नेम इज विवेक शर्मा, आई लाइक योर फोटो, ठीक है, आर यू अ ट्रैवलर, अमेजिंग मैन, अमेजिंग शूट। ठीक है, वैसे ही करना है हमें। if I am a student, I want to reach to you, so I'll say, hi Manish, I have been going through your profile and amazing work you are doing in your industry, and your company is also moving much faster, and I've seen that you also hired for a fresher. These are my skills, this is my resume, please do let me know if I can contribute to your company. Right, simple. ठीक है यार, that's a spirit, that's a hard thing to reach out people. एक नहीं जवाब देगा, दो नहीं देंगे, 3 4 5 100 नहीं देंगे। क्या सिर्फ 100 ही है क्या? नहीं, मतलब सिर्फ 100 है क्या? नहीं है ना भाई। आगे बढ़ो ना यार, 100 लोगों ने जवाब नहीं दिया, छोड़ो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। 101 को मैसेज करो। Getting it. Actually, fair enough answer है। Actually, this is how the industry is actually moving. अभी बच्चों को भी ऐसे ही करना चाहिए, right? Because ऐसे डर भी निकल जाएगा उनके अंदर का कि that's how they can just overcome the fear, right? Voice is breaking. So this is how the students can actually overcome the fear, right? उनका डर खत्म हो जाएगा उस चीज का कि absolutely. कैसे करना है मैसेज, right? Like fair enough takeaways from this as well. So अब let's move to the negotiation part. Like ऐसा होता है कि when you are appearing for the interviews या फिर interviews भी नहीं, इस तो student perspective हो गया. The other side is जब you're actually building your own startup या फिर you're actually building your own business या फिर you're looking for a client, right? You're actually looking to deliver some service of your own, है ना? So what is the most effective negotiation strategy that you believe कि हाँ this should be implemented whenever you're trying to pitch something to someone? So negotiation can be in many terms, like that can be in terms of price, that can be एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें आपके पास ऑलरेडी, अगर हम स्टूडेंट को अपार्ट करें और पर्सपेक्टिव देखें इंडस्ट्री का, ऐसा भी होता है कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आपकी कंपनी के पास ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन है, बट उस सॉल्यूशन में सारी फीचर्स नहीं है जो क्लाइंट मांग रहे हैं, तो हम ये भी नेगोशिएट करते हैं कि आप इस सॉल्यूशन पे चलो, ठीक है। तो ऐसा प्रपोजल हमें डिजाइन करना होता है जो क्लाइंट की नीड, रिक्वायरमेंट को मीट, ठीक है। अपने बारे में तो हमें बताना ही बताना कि यार दिस वी आर द कंपनी, वी हैव बीन इनटू द बिजनेस सिंस लास्ट 10 years, 15 years, 20 years,
we have that much of developer and these are our clients that we have served and have a good number of reviews and we can understand your problem. So first of all, अगर हमारे पास में क्वेश्चन इज द बेस्ट आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन, ठीक है। अगर मुझे एक प्रपोजल दिख रहा है, अगर मुझे एक क्लाइंट दिख रहा है जिसने एक रिक्वायरमेंट को डाला है इंटरनेट पे, तो मैं ये चीज असम्पशन लेके चलूंगा कि भाई इसके पास 100 प्रपोजल और है, राइट, ठीक है। और हर सबकी एक ना एक स्ट्रेटेजी होगी, और उन सब में एक चीज कॉमन होगी, सबने अपने बारे में बताया होगा, सबने अपने क्लाइंट के बारे में बताया होगा, सबने बताया होगा कि मैं आपकी प्रॉब्लम समझ गया, ठीक है। बट वो चीजें होगी कैसे? लेकिन आपका प्रपोजल क्यों खोले? सबका है वहां पे, ठीक है। हो सकता है 50 ऐसे बैठे हो जिसको आप ज्यादा एक्सपीरियंस, तो हमें क्या करना है, हमें ऐसा हुक देना है क्लाइंट को स्टार्टिंग में ही, ठीक है। जैसे क्या होता है कि जब हम किसी को मैसेज करते हैं तो स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन दिखती है ना, फर्स्ट लाइन। तो अगर हम बिजी भी हैं, कोई हमें मैसेज करे और उसकी फर्स्ट लाइन में लिखा हो मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, तो हम खोलेंगे ना उस मैसेज, राइट, यार पता नहीं क्या सुना है तुम्हारे बारे में, ठीक है। लॉजिकल बात है यार, ठीक है। और अगर मैं उस मैसेज में ये लिखूं कि हाय मनीष, आई एम विवेक शर्मा, और मैं बीच में कहीं ये जाके लिखूं कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, तो तुम उसको इग्नोर करो यार, तेरे टाइम में देखो, ठीक है। तो हुक क्या था वहां पे कि मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है, जल्दी कॉल करो, ठीक है। तो तुम भले उसको रिप्लाई करो कि भाई मीटिंग में हूं, बाद में कॉल करूंगा, अच्छा क्या सुना है, ठीक है। तो एक कन्वर्सेशन बैठ रही है ना। तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या करती है यार, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं मेरी स्ट्रेटेजी क्या है, ये मैंने सीखी है। पिच टू द क्लाइंट्स और सर्विसेज और कुछ भी हो, चाहे मैं इंटरव्यू में बैठा हूं, ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटेजी है क्वेश्चंस। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने बोला कि मेरे को एक एप्लीकेशन बनवानी है या मेरे को एक वेबसाइट बनवानी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैं बना दूंगा मैंने इतनी वेबसाइट बनाई, तो मैं लिखूंगा पहला मेरा होगा 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कि हाय मनीष, डू यू वांट टू बी योर वेबसाइट टू बी बिल्ट इन कोडिंग प्लेटफॉर्म और विदाउट कोडिंग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज I just want to, before starting anything, I just want to know, or I just want to hear from you how large your business is, right? Or in what domain you do business, and what are your priorities? If you will help me with those questions, I'll be more, give you the more concise information about it. जब तुम पहले ही 2 लाइन में ये क्वेश्चन पढ़ लोगे तो तुमको लगेगा ना इस बंदे को समझ में आया है, राइट, ठीक है, इसका आंसर करना चाहिए। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है और मुझे उसका आंसर पता है, तो भले ही आपने देखा होगा ना बहुत बार क्या होता है, चलो लाइफ रिलेट करते हैं। बहुत बार क्या होता है, मान लो 3-4 लोगों का ग्रुप बात कर रहा है आपसे, ठीक है, चाय की टपरी की बात कर रहे हैं, चाय की टपरी पे 3-4 लोगों का ग्रुप बात कर रहे हैं, ठीक है, और आपके हाथ में चाय, बट यू आर नॉट द पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, और वो कोई क्वेश्चन कर रहा है, कोई टॉपिक कर रहा है और आपको उसके बारे में पता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप इंडल्ज हो जाते हो उस कन्वर्सेशन में। मान लो पॉलिटिक्स के ऊपर बात चल रही है, तो आप बोलते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं, तो ये ह्यूमन टेंडेंसी, चाहे आपको उस चीज से मैटर हो या ना हो, अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप उसका आंसर, राइट, ठीक है। I got it. So that is one of the strategy that can be implemented and उसके अलावा तो बहुत सारे स्ट्रेटेजी है यार, हम लोग कितना बताएं, पर वो करते करते you can just learn, right? And this is a fair enough overview about how actually negotiation is carried out, right? Now moving to the last segment of the whole podcast, and we'll just try to end the conversation here with this answer itself, right? So any takeaways for the students that you think that students should actually focus upon when they're pursuing the particular degree they are into, right? जो भी वो कोर्स कर रहे हैं उस टाइम पे ऐसे क्या फैक्टर्स है जिनका उनको खास ध्यान रखना चाहिए, so that they can actually build a better future for themselves, and yeah, then we can end the podcast at a positive note. ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि इतना टेंशन लेने की जरूरत है नहीं किसी को, ठीक है, बट जो नेसेसरी काम है वो करो, राइट, दैट्स इट। अगर नेसेसरी काम को पीछे रख के बाकी चीजें आगे जाएंगी तो फिर वो उसका रिजल्ट वैसे आना है। एवरीबॉडी नोज दैट, एवरीबॉडी नोज दैट, ठीक है। तो मुझे लगता है कि कॉलेज लाइफ है, उसमें फन होता है, हमने भी किया, सब करते हैं, वो तो करना ही चाहिए। अगर वो भी नहीं करेंगे तो लाइफ तो बिल्कुल सीरियस हो जाएगी। जिंदगी है जीने के लिए, खुश रहने के लिए, ठीक है। बट मुझे लगता है कि अगर क्लास चल रही है तो क्लास में चलना है, ठीक है। अगर टीचर है जो बता रहा है थर्मोडायनामिक्स इज इफेक्टिव टू द इंजन, ठीक है, हाउ दिस पर्टिकुलर साइकिल वर्क्स, हाउ दिस प्रोग्रामिंग वर्क्स, ठीक है, और आप है छोड़ना यार, ग्राउंड में बैठते हैं, ठीक है, छोड़ना यार, तो भाई फिर तो कोई नहीं पाएगा ना डेवलपमेंट, ठीक है, राइट। आपको अगर लेक्चर बंक करना है तो आप वो लेक्चर बंक करो जिसका बंक आप वियर कर सकते हो, आप वो चीज बंक करो। कई बार तो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो प्रैक्टिकल से छोड़ देते, इंटरनल प्रैक्टिकल छोड़ दी, सीटी चल रहा है छोड़ दी, क्योंकि इनके मार्क्स काउंट नहीं। एंड व्हाट अबाउट द क्वेश्चंस जो उसमें थे, जिसके आंसर अगर आप एक बार उसमें लिख देते तो वो आंसर आपको दोबारा याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर ए फाइनल एग्जाम। व्हाट अबाउट दैट, राइट, वो तो आपने मिस कर दिया ना, ठीक है। तो अगर आप वो 1 घंटे का सीटी देने के बाद मस्ती करते तो कुछ और बात होती ना, राइट, है ना। तो मुझे लगता है कि एक इस कॉलेज में एक करिकुलम एंड लाइफ बैलेंस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, जो किसी भी स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए, ठीक है। यार ऐसी कोई मस्ती नहीं है जो आप मिस कर दोगे अगर आप एक सीटी दे दोगे, ठीक है।
अगर आप एक क्लास टेस्ट में अपीयर हो रहे हो तो ऐसी कोई मस्ती नहीं है जो आप छोड़ दोगे, ठीक है भाई। आप हॉस्टल में भी जो रहते हो, आप रात में मस्ती कर सकते हो, आप वॉलीबॉल खेल सकते हो, आपके पास सब कुछ है करने के लिए, सब कुछ। क्योंकि जो यूनिवर्सिटी है ना, उसने डिजाइन उसको इसी तरह से किया है। यूनिवर्सिटी थोड़ा चाहती है कि आप 24 घंटे इसी में रखें, हम नहीं, वो भी चाहती है कि भाई बाकी करिकुलम के लिए भी टाइम बचे, ठीक है। बट हमने अपना एक करिकुलम सेट कर, राइट। लेक्चर में नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, ठीक है। फाइनल सेमेस्टर में देखें, मुझे लगता है फर्स्ट ईयर में तो आपको जो बेसिक सब्जेक्ट है उस पर फोकस करो, अपना कॉलेज एक्सप्लोर करो, कॉलेज लाइफ को जियो, आपकी फ्रेशर्स हो, इनको एक्सप्लोर करना है चीजों को, अपना माइंडसेट बिल्ड करना है, वो बिल्ड करो बिना किसी प्रेशर। कोई प्लेसमेंट का प्रेशर मत लो, कोई रिक्रूटमेंट का प्लेसमेंट प्रेशर मत लो। लाइक सेकेंड ईयर में जब आप आ जाओ, मेक श्योर कि आपके बैक ना है, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा बर्डन डालता है, राइट, ठीक है। जब सेकेंड ईयर में आ जाओ, आपको और फ्रेंड बन जाए, आप थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, उस मैच्योरिटी के साथ आप चलने लगो, राइट। थोड़ी सी जो मस्ती थी उसको कम करो। जब थर्ड ईयर में आ जाओ, अपने लाइफ के बारे में सोचना शुरू करो, प्लान आउट कर लो चीजों को, मुझे क्या करना है, ठीक है। और फाइनल ईयर तक आते आते उसका एक्सप्लोर, तो आपने लाइफ भी अपनी अच्छे से जी, आपने मस्ती भी करी, आपने अपना फर्स्ट ईयर भी अच्छे से किया, फ्रेशर भी किया, सब कुछ किया, और आपकी लाइफ भी सेट आप खुश, ठीक है। दैट्स हाउ हैप्पी पर्सन यू नो कैन लिव देयर एंटायर लाइफ टुगेदर, राइट। दैट्स व्हाट आई थिंक। अदरवाइज सबकी अपनी लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, राइट। तो बहुत एवरीवन हैज हिज ओन वे टू लिव द लाइफ। ये डिस्कशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा है अभी तक, पता है। आई एम वेरी थैंकफुल कि विवेक सर यू एक्चुअली कंट्रीब्यूटेड दिस मच टू द पॉडकास्ट इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपीरियंस, राइट। मतलब इतना कुछ सीखने को मिला मुझे खुद अभी, मतलब सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। यू नो, आई हैव लिसन्ड टू यू, लाइक आई एम द फर्स्ट पर्सन हु इज लिसनिंग टू यू, राइट। सो द थिंग इज कि लाइक ऑल दीस थिंग्स आर सो इन्फ्लुएंशियल कि एकदम ऐसा ना, इट्स आल्सो रिलेटेबल कि हाँ मैं समझ सकता हूँ कि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज अभी, राइट। ये मैं अपनी चारों तरफ देख रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी बैकें आ रही हैं, मैं देख रहा हूँ कि मेरे भी ऐसे दोस्त हैं जो कि बिल्कुल सीरियसली ले रहे चीजों को, वहीं कुछ दोस्त हैं जो कि बहुत ज्यादा सीरियस हैं और मेहनत कर रहे हैं, राइट। और वही फिर चीजें खुद को अपने आप पे अप्लाई करते हुए, या कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, राइट। और मतलब यू नो दिस पॉडकास्ट हैज बीन आई बिलीव द मोस्ट फ्रूटफुल मंच में से एक अब तक जो भी मैंने रिकॉर्ड करा है, राइट। इस पर्सपेक्टिव से कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, फर्स्ट थिंग, राइट। दूसरा कि इट इज मोर रिलेटेड टू द ग्राउंड रियलिटी, राइट। कोई वो फैंसी बातें नहीं, राइट। इट इज टोटली रिलेटेड टू व्हाट एक्चुअली इज बीइंग, यू नो, व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग राइट नाउ इंडस्ट्री में भी, बच्चों के साथ भी, राइट। और हाउ शुड यू एक्चुअली बिल्ड द अप्रोच फॉर योरसेल्फ, हाउ टू एक्चुअली सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, है ना, उसको अचीव कैसे करना है जो आपने खुद के लिए बनाया है, राइट। सो वी हैड अ डिस्कशन अबाउट आई बिलीव एवरीथिंग, यू नो, you just covered everything in such a short duration, and this is also a skill that you have, you know, learned throughout the process, right? How to actually deliver. Absolutely. And Yeah, like it is really commendable whatever you have done, because this is something out of the box, right? क्योंकि इतना आसान नहीं होता इतनी सारी बातें इतनी जल्दी कर देना, right? And और वो भी इतने impact के साथ कर देना, you know, this must have influenced a lot of students, right? And I'm really thankful that you actually invested so much of your time to this podcast.